Nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. تو آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی ملاقات کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ 10 نومبر 2025 کو ڈیلس میں ہوئی ایک کثیر العقیدہ نشست تھی. جی، جہاں حاضر امام نے ان جوڑوں سے براہ راست بات چیت کی جن میں سے ایک شریک حیات اسماعیلی تھا اور دوسرا کسی اور عقیدے سے. بالکل. اور ہمارے پاس صرف گفتگو کی ایک تفصیلی سمری موجود ہے. یہ صرف سوال جواب کی ایک لسٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں وہ پورا ماحول، وہاں موجود لوگوں کے جذبات اور جو جوابات دیے گئے ان کے پیچھے کی گہری سوچ سمجھنے میں مدد ملتی ہے. بالکل. تو آج کا ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم اس سمری کی مدد سے اس پوری نشست کی تہوں کو کھولیں. یہ دیکھیں گے کہ اس کا ماحول اتنا خاص کیوں تھا، کون سے مشکل اور حساس سوالات پوچھے گئے. جی ہاں. اور ان کے جوابات سے خاندان، کمیونٹی اور ذاتی روحانیت کے بارے میں کیا اہم سبق ملتے ہیں. خاص طور پر یہ کہ مشترکہ اقدار کیسے مختلف عقائد کے لوگوں کو جوڑ سکتی ہیں. چلیں پھر شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میٹنگ کے ماحول کی بات کرتے ہیں، جو اپنے آپ میں ہی بہت دلچسپ تھا. یہ عام جلسوں جیسا بالکل نہیں تھا. یہ بات 100% درست ہے. یہ ڈیلس کنونشن سینٹر میں ہوئی، لیکن اس کا جو انتظام تھا وہ کسی بڑے لیکچر ہال جیسا نہیں تھا. تقریباً 400 جوڑے، یعنی 800 لوگ. جی، 800 کے قریب لوگ وہاں موجود تھے اور انہیں 20 مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا. ہر گروپ میں صرف 40 لوگ تھے. اچھا، یعنی ایک چھوٹی کلاس یا ورکشاپ جیسا ماحول بن گیا. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ مقصد تقریر سننا نہیں تھا بلکہ بات چیت کرنا تھا. یہی نکتہ ہے. ہر گروپ اونچی میزوں کے ارد گرد کھڑا تھا. بیٹھنے کا کوئی رسمی انتظام بھی نہیں تھا، جس سے ماحول اور بھی بے تکلف ہو گیا. یہ ڈیزائن خود ایک پیغام دے رہا تھا کہ یہاں ہر کوئی برابر ہے اور ایک دوسرے سے کھل کر بات کر سکتا ہے. یہ ایک بہت سوچا سمجھا فیصلہ تھا تاکہ لوگ آرام دہ محسوس کریں اور ایک حقیقی مکالمہ ہو. اور اس مکالمے کو منظم کرنے کے لیے ہر گروپ کا ایک سہولت کار یعنی فیسیلیٹیٹر بھی تھا. ہمارے پاس گروپ 2 کی تفصیلات ہیں، جہاں مارک نامی شخص یہ ذمہ داری نبھا رہے تھے. جی، اور ان کا کام صرف سوالات اکٹھے کرنا نہیں تھا، بلکہ حاضر امام کی آمد سے پہلے انہیں موضوعات کے لحاظ سے ترتیب بھی دینا تھا. یہ بہت اہم قدم ہے. اس سے افراتفری نہیں پھیلتی. بالکل. اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ جو سوالات زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان پر بات ہو. یہ ایک طرح سے اجتماعی دانش کو منظم کرنے کا عمل تھا تاکہ وقت کا بہترین استعمال ہو اور گفتگو بامقصد رہے. تو سٹیج پوری طرح سے تیار تھا. چھوٹے گروپس، ایک بے تکلف ماحول اور پہلے سے سوچے سمجھے سوالات. پھر ٹھیک 11 بجے حاضر امام ہال میں داخل ہوئے. ان کی آمد کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ ان کی آمد بہت گرم جوش تھی. انہوں نے آتے ہی شرکاء کے تعداد پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا، لیکن پھر فوراً یہ بھی کہا کہ وہ مستقبل میں اس سے بھی چھوٹی اور زیادہ ذاتی نشستیں منعقد کرنے کی امید رکھتے ہیں. اچھا، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ بڑے اجتماعات سے زیادہ ایک ایک فرد سے ذاتی تعلق اور گہری گفتگو کو اہمیت دیتے ہیں. صحیح. اور آتے ہی انہوں نے ماحول کو مزید ہلکا پھلکا بھی کر دیا. وہ کیسے؟ جی، ان کے حصے مزاح نے فوراً کام دکھایا. انہوں نے مذاقاً کہا کہ شاید کچھ شریک حیات کو اس تقریب میں آنے کے لیے ان کے اسماعیلی پارٹنر نے گھسیٹا یا مجبور کیا ہوگا. اچھا، اس بات پر تو پورے ہال میں کہکہے گونج اٹھے ہوں گے. یقیناً. پھر انہوں نے فوراً ہی بات کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ غیر اسماعیلی شریک حیات یقیناً بہت ذہین ہوں گے کیونکہ انہوں نے اسماعیلی کمیونٹی میں شادی کرنے کا انتخاب کیا ہے. یہ تو ایک ہی لمحے میں تعریف اور مذاق کا بہترین امتزاج ہے. اس نے یقیناً ہر اس شخص کو بہت آرام دہ محسوس کرایا ہوگا جو شاید تھوڑا ہچکچا رہا ہو. بالکل. اور اس کا اثر فوراً نظر بھی آیا. جب حاضر امام گروپ 2 کے پاس پہنچے تو ایک صاحب فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی خوبصورت اسماعیلی بیوی کے ساتھ 40 سال سے خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں. 40 سال؟ اور یہ کہ یہ ان کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھا. یہ کوئی منصوبہ بند بات نہیں تھی، یہ اس بے تکلف ماحول کا ہی نتیجہ تھا. واہ، آپ اس گرم جوشی کو محسوس کر سکتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ذاتی کہانیاں ہی تو ایسی نشستوں کو یادگار بناتی ہیں. یہ صرف نظریاتی سوالات نہیں تھے بلکہ لوگوں کے زندہ تجربات تھے. جی،
और जब ग्रुप के फैसिलिटेटर मार्क ने हाजिर इमाम को अपने जमा किए हुए नोट्स और सवालात दिखाए तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है हमारे पास बात करने के लिए कुछ चीजें। ये जुमला बहुत अहम है। इससे जाहिर होता है कि वो किसी तैयार शुदा तकरीर के साथ नहीं आए थे, बल्कि वो लोगों के हकीकी सवालात सुनने और उन पर एक हकीकी मुकालमा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सही। और जाती तारुफ तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन फिर असल गुफ्तगू शुरू हुई जहां उन खानदानों के लिए सबसे अहम मसाइल पर बात हुई, और पहला ही सवाल बहुत अमली और अहम था। जी, मार्क ने पूछा कि क्या गैर इस्माइली शरीक हयात को जमाती और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क यानी AKDN के इदारों में अपनी पेशेवराना खिदमात अंजाम देने के मौके मिल सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ शमूलियत का नहीं बल्कि शराकतदारी का सवाल है। इसका जवाब कैसा था? क्या उसमें कोई इबाहम था? नहीं, जवाब बहुत वाज़ेह और दो टोक था। हाजिर इमाम ने फरमाया कि असल चीज़ जो है वो इंसान की इक़दार है, दयानतदारी, खुलूस, खिदमत का जज्बा और पेशावराना काबिलियत। अच्छा। उन्होंने वाज़ेह किया कि AKDN के इदारे मजहब से बालातर होकर हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो माशरे में मुस्बत किरदार अदा करना चाहता है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अहम तफरीक भी की। क्या तफरीक थी वो? उन्होंने फरमाया कि मजहबी मकामात जैसे कि जमात खाने, उनके अपने उसूल व ज़वाबित और रिवायात होती हैं। ये रूहानियत का एक ख़ास दायरा है। सही। लेकिन AKDN जैसे वसीतर तरक्याती इदारे जो तालीम, सेहत और माशी तरक्की के लिए काम करते हैं, वो पूरी इंसानियत के लिए हैं। यानी वहाँ शिरकत का मेयार मजहब नहीं बल्कि अहलियत और मुश्तरका इंसानी अक़दार हैं। बिल्कुल, ये दरअसल शमूलियत की एक बहुत अमली और हकीकत पसंदाना दावत है। इस वाज़े जवाब के बाद गुफ्तगू एक और संसास मौजू की तरफ मुड़ गई, जो कम्युनिटी के अंदरूनी ढांचे से मुताल्लिक था। सवाल जमाती क़यादत के बारे में था कि अक्सर वही चेहरे क्यों नजर आते हैं। जी, और ये कि दूसरों को कब मौका मिलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन पूछने से हिचकिचाते हैं। और इस सवाल का जवाब भी उनके मखसूस अंदाज में था, जिसमें मजाह और गहराई एक साथ थे। जी हाँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसका इल्जाम मुझ पर न डालें, ये मुझे अपने वालिद से विरासत में मिले हैं। अच्छा, मैं खुद इस किरदार में अभी नया हूँ और हमें अभी बहुत आगे जाना है। ये जवाब बज़ाहिर तो मजाक लगता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ पोशीदा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मज़ाहिया जवाब नहीं है, ये दरअसल क़यादत का एक बहुत जदीद अंदाज है, जहां आप मसले की पेचीदगी को तस्लीम करते हुए एक ज़ाती ताल्लुक़ कायम करके तब्दीली के अमल को एक मुश्तरका सफ़र के तौर पर पेश करते हैं। ये मैं सब ठीक कर दूंगा वाले रिवायती दावे से बहुत मुख्तलिफ है। ये कहना कि मैं खुद अभी नया हूँ भी बहुत मायने खेज है। ये एक तरह से आजिज़ी का इजहार है और ये तस्लीम करना है कि तब्दीली एक अमल है। उसके बाद गुफ्तगू एक और बहुत ज़ाती और शायद सबसे नाजुक मौजू पर आई। जी, गैर इस्माइली शरीक हयात का रूहानी सफ़र और इबादत गाहों तक रसाई। जी, और इसका जवाब कई हिस्सों पर मुश्तमिल था और हर हिस्सा बहुत अहम था। सबसे पहले उन्होंने इस बुनियादी उसूल को दोहराया कि ईमान एक इंतहाई ज़ाती मामला है। कम्युनिटी का काम किसी को मजहब तब्दील करने पर आमादा करना नहीं है। ये एक बहुत मजबूत पैगाम है जो हर किस्म के दबाव को रद्द करता है। लेकिन अमली तौर पर जमात खानों तक रसाई के बारे में क्या कहा गया, जहां अक्सर पाबंदियां होती हैं? इस पर उन्होंने वजाहत की कि कुछ इलाकों में दाखिले पर पाबंदियां किसी को बाहर रखने या अलग करने के इरादे से नहीं हैं, बल्कि इसकी वजूहात सिक्योरिटी, तारीखी पसे मंजर या मकामी हालात हो सकते हैं। अच्छा, यानी ये एक तरह से लोगों को बड़े तनाजुर में देखने की दावत थी कि हर उसूल के पीछे कोई वजह होती है। सही। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इबादत गाह तक रसाई महदूद है तो एक गैर इस्माइली शरीके हयात रूहानियत कहाँ तलाश करे? क्या उसका मतलब है कि वो इस रूहानी जिंदगी से बिल्कुल बाहर है? यहीं पर जवाब का सबसे गहरा और ताकतवर हिस्सा आता है। हाजिर इमाम ने फरमाया कि ईमान की रूहानियत सिर्फ इबादतगाह की चार दीवारी तक महदूद नहीं है। अच्छा, असल रूहानियत अक़दार में जिंदा है। दूसरों की खिदमत करना, आजिज़ी इख्तियार करना, इल्म हासिल करने का शौक़, सखावत और तकसीरियत यानी प्लूरलिज्म। इस नज़रिए को दिल से कबूल करना कि दुनिया में सच्चाई तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। बिल्कुल, तो पैगाम ये था कि अगर आप अकीदे को समझना चाहते हैं
तो रसूमात से पहले अक़दार को समझें और उन पर अमल करें। ये तो रूहानियत का एक बहुत ही वसी और जामे तसव्वुर है। यही उसका मरकजी ख्याल है। उन्होंने मशवरा दिया कि जो लोग इस अकीदे को समझना चाहते हैं उन्हें इन अक़दार से शुरुआत करनी चाहिए। ये एक ऐसा रास्ता है जो सबके लिए खुला है, चाहे उनकी इबादतगाह तक रसाई हो या ना हो। इसी से जुड़ी हुई अगली बात ये थी कि गैर इस्माइली शरीके हयात अपने घर की रूहानी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यानी अगर वो रस्मी तौर पर इस्माइली नहीं है तो ख़ानदान के रूहानी माहौल में उनका क्या किरदार हो सकता है। कि ख़ानदान की रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्माइली होना ज़रूरी नहीं। वाकई जी, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना जो मेहरबानी, तजस्सुस, हमदर्दी और इखलाकी दयानतदारी पर मबनी हो, वो भी उतनी ही बामायनी है और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा। ये बात रवायती सोच से बहुत मुख्तलिफ है, जहां आम तौर पर ये समझा जाता है कि ख़ानदान में रूहानी यकसानियत होनी चाहिए। यहाँ तो तनव्वुह यानी डाइवर्सिटी को एक ताकत के तौर पर पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, पैगाम ये था कि घर में मुख्तलिफ नुक्ते नज़र का होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये ख़ानदान को फ़िक्री तौर पर ज़्यादा अमीर बनाता है। उन्होंने जोर दिया कि ख़ानदान के इत्तेहाद की असल बुनियाद मुश्तरका इखलाकियात और अक़दार हैं। अगर एक ख़ानदान मेहरबानी, सच्चाई और एक दूसरे की मदद जैसी अक़दार पर मुत्तफ़िक है तो उनकी बुनियाद बहुत मजबूत है, चाहे उनके मजहबी अक़ायद मुख्तलिफ हों। यानी अहम ये नहीं कि आप इबादत कैसे करते हैं, बल्कि अहम ये है कि आप ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। और फिर आखिर में गुफ्तगू का इख्तिताम उस मौजू पर हुआ जो शायद इन तमाम ख़ानदानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, कसीरुल अक़ीदा घरों में बच्चों की परवरिश। जी, और इस पर दिया गया जवाब शायद इस पूरी नशिस्त का सबसे यादगार और ताकतवर नुक्ता था। एक जुमला जिसमें तरबियत की पूरी नफ्सियात छुपी हुई है। बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं जो वो देखते हैं, बनिस्बत उसके जो उन्हें बताया जाता है। यानी आपका अमल आपके अल्फाज से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलता है। लेक्चर देने से कहीं ज़्यादा अहम ये है कि आप खुद कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही उसका खुलासा है। अगर एक घर में वालिदैन एक दूसरे के साथ हमदर्दी, इज्जत और मोहब्बत का अमली नमूना पेश करते हैं तो यही वो मिरास है जिसे बच्चे आगे लेकर चलते हैं। सही। उन्होंने फरमाया कि कसीर अल अक़ीदा ख़ानदानों में कलीदी नुक्ता ये नहीं है कि बच्चे किस मज़हब की पैरवी करेंगे, बल्कि यह है कि वालिदैन किन अक़दार पर मुत्तफ़िक़ हैं। अगर वो ईमानदारी, मेहनत और हमदर्दी जैसी बुनियादी इंसानी अक़दार पर मुत्तफ़िक़ हैं तो बच्चे एक मजबूत अखलाकी बुनियाद के साथ परवरिश पाएंगे। और यही सबसे अहम चीज़ है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि बच्चों को दो मुख्तलिफ अकायद के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर करने की बजाय उन्हें वो मुश्तरका अखलाकी ज़मीन फराहम की जाए जहाँ दोनों अकायद मिलते हैं। जी, और ये कि वो देखें कि उनके वालिदैन अपने इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये सबक उन्हें सिर्फ मजहब के बारे में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में तकसीरियत और एहतराम सिखाएगा। ये सिर्फ मजहबी तालीम नहीं, ये ज़िंदगी की तालीम है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को समेटें तो ये वाकई एक गैर मामूली नशिस्त थी। इसमें खुलापन, हिस्से मज़ाह और गहरी हिकमत का एक नायाब इम्तिजाज था। जी हाँ, बार बार जोर सिर्फ मजहबी शनाख्त या लेबल पर नहीं बल्कि अमली जिंदा अक़दार पर था। और हमें मार्क बैल्कन जैसे सहूलतकार की महारत को भी सराहना चाहिए जिसने ऐसे बामानी मुकालमे को मुमकिन बनाया। बिल्कुल, ये पूरी बातचीत इस बात का सबूत है कि किस तरह वो मौज़ूआत जो मुमकिना तौर पर इख्तिलाफ का बाइस बन सकते हैं, जैसे मखलूत अकायद, क़यादत, जी, क़यादत में नुमाइंदगी और इबादतगाहों तक रसाई, उन्हें मुश्तरका इंसानी अक़दार की बुनियाद पर इत्तेहाद और अफ़ाहम व तफ़हीम के मौक़े में तब्दील किया जा सकता है। ये गुफ्तगू तक़सीम पर नहीं बल्कि उन पुलों पर मरकूज़ थी जो हमें जोड़ते हैं। इस गुफ्तगू में ये तो वाज़े हो गया कि मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग कम्युनिटी और ख़ानदान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी शराकत को किस नज़र से देखा जाता है। लेकिन एक सोच जो सुनने वालों के लिए छोड़ी जा सकती है वो ये है, हमने ये तो सुन लिया कि कम्युनिटी इन ख़ानदानों को क्या दे सकती है, लेकिन इसका दूसरा रुख भी है। कसीरुल अक़ीदा ख़ानदानों से आने वाले ये मुतनव्वे नुक्ता नज़र
مستقبل میں کسی بھی کمیونٹی کی اپنی بنیادی اقدار کے بارے میں سمجھ کو صرف بہتر ہی نہیں کرتے بلکہ اسے ارتقاء کے عمل سے گزار کر مزید مضبوط کیسے بناتے ہیں۔